السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خونی کہاوت ایپیسوڈ نمبر 13۔ کاکو لال، ان دونوں کلسوں میں کنیاں بھری ہوئی ہیں، یہ دولت میری طرف سے تیرے لیے ہے، لیکن اب اسے سنبھال کر اپنے گھر لے جانا اور اس کے بعد اسے اس طرح استعمال کرنا کہ بستی والوں کو تجھ پر شک نہ ہو۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے، کیا سمجھا؟ میں اس سے زیادہ تیری کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کاکو لال کا ذہن آزاد کیا اور رینگتا ہوا اس جگہ سے باہر چل پڑا جدھر سے یہاں آیا تھا۔ سچ مچ اس سے زیادہ میں کر ہی کیا کر سکتا تھا، اور اب وہ جانے اور اس کا کام۔ میں نے کاکو لال کا ذہن آزاد کیا اور رینگتا ہوا اس جگہ سے باہر چل پڑا جدھر سے یہاں آیا تھا۔ سچ مچ اب وہ جانے اور اس کا کام، لیکن ایک خیال میرے دل میں ضرور پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح، کاکو لال مہاراج آپ اس عظیم دولت کے حصول کے لیے کیا کرتے ہیں، اور یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ در حقیقت اس تجربے کے لیے مجھے خود بھی کافی تکلیفیں اٹھانا پڑی تھی۔ کھنڈرات سے بستی تک کا فاصلہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر طے کرنا آسان کام نہیں تھا۔ پھر کاکو لال کے ہاں سانپ دیکھا جا چکا تھا، اس لیے بھی خطرہ تھا کہ کہیں جگہ جگہ اس کی تلاش نہ ہو۔ پھر بھی چھپنے کے لیے دو ٹھکانے موجود تھے میرے پاس۔ ایک سامان کا وہ انبار جو الٹا سیدھا سامان بے شک تھا، لیکن میرے لیے انتہائی کارآمد۔ دور سے جاڑ جھنکار کے درمیان وہ جگہ جہاں سب سے پہلے میں کاکو لال کے ہاں آ کر چھپا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دولت سچ مچ عقل بھی دے دیتی ہے اور انسان کی تمام سادگی رخصت ہو جاتی ہے۔ کاکو لال مہاراج نے جو کچھ کیا اور وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی جوانی واپس لوٹ آئی ہو۔ اپنے احاطے کے ایک گوشے میں زمین کھودنے لگا اور کافی کھدائی کر ڈالی، مٹی کے انبار لگا دیے۔ بے دھرم پتی جی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چپ ہو جا، بس جو کچھ میں کر رہا ہوں بس خاموشی سے مجھے کرنے دے۔ میں آج سے ناگ دیوتا کا داس بن گیا ہوں، یہاں میں ناگ دیو منڈپ بنا رہا ہوں۔ ارے آخر تمہارے اوپر یہ ناگ دیو کیوں سوار ہو گیا ہے؟ دیکھ، ناگ دیوتا کی شان میں اگر ایک لفظ بھی غلط کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں ناگ دیوتا کا پجاری بن چکا ہوں اور آج سے تم لوگ مجھے ناگ دیو کا پجاری کہو گے۔ بس اب یہی کسر رہ گئی تھی، ناگ دیوتا کا پجاری، اور بننا رہ گیا تھا۔ بن جاؤ، اور تو کسی کام کے رہے نہیں۔ دونوں پتی پتنی میں خوب لڑائی رہی اور پتنی جی منہ بنا کر اندر جا بیٹھی، لیکن کاکو لال نے اپنا کام جاری رکھا۔ چاروں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، مٹی کا دائرہ بنایا اور اس سے ایک عجیب و غریب چیز تیار کرنے لگا۔ بس کچھ ایسی ہی کارروائیاں کر رہا تھا وہ، اور میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے ایک ایسی جگہ بنا دی جسے مندر کی قسم کہا جا سکتا تھا، لیکن بس 3-4 فٹ اونچی جگہ تھی، اور اس کے اندر وہ چوڑا گڑھا جس میں سے مٹی نکالی گئی تھی، اور پھر اس نے گڑھے کو لکڑیوں سے پاٹ دیا اور اس پر گھاس پھوس ڈالی اور وہاں دھونی جما کر بیٹھ گیا۔ لڑکیاں ہنس رہی تھی اور کاکو لال کی دھرم پتنی ملنے جلنے والوں سے کہہ رہی تھی کہ اب دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا ہے۔ لوگ افسوس بھی کر رہے تھے کہ غربت کی وجہ سے بیچاروں کا کاکو لال پاگل ہو گیا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ کاکو لال نے جی نے کیا چکر چلایا ہے، اور اس ساری جگہ کو انہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ رات کو میرے علم میں آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور اس میں جاڑ جھنکار کے نیچے کنڈلی مارے بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا کہ میں نے چونک کر دیکھا۔ کاکو لال ایک کلسا کاندھے پر لادے، دوسرا بغل میں دبائے ڈولتے آ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ وہاں اس گڑھے کے اوپر سے گھاس اور لکڑیاں بنائیں اور کلسے کو اس کے اندر چھپا دیے۔ لکڑیاں اسی طرح برابر کیں اور پھر اس پر اسی طرح دھونی جمائے بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں اور بن گئے کاکو لال ناگ پجاری۔ مجھے بہت لطف آ رہا تھا کاکو لال اس کی چالاکی پر، اور اس کے بعد میں نے وہاں کافی دن
छुप छुप कर गुजारे। काकूलाल को काम करते हुए देखा। काकूलाल शहर गया था और लदा फंदा वापस आ गया। लाजमी बात है कि गनियाँ बेचने गया होगा और घर में खुशियाँ उतर आईं। अलबत्ता उसके किरदार में एक खूबी देखी और मैंने उसके अपने मरियल बैलों के लिए भी उसने वहीं हर तरह की बेहतरी का इंतज़ाम कर दिया था। बुरे वक़्त के उन साथियों को उसने अपने आप से दूर नहीं किया और उनकी देखभाल भी उसी तरह होने लगी। 15 दिन में मैंने यहाँ गुजारे। अब यहाँ रुकना बेकार था और ऐसा काम हुआ था जिससे मुझे खुशी हुई। मुझे इत्मीनान था कि काकूलाल ने पहला ही जो कदम उठाया है वो ऐसा है कि अंदाज़ा होता है कि वो किसी के जाल में नहीं फंसेगा और ज़िंदगी की गाड़ी को आराम से धकेल ले जाएगा। और ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं जिन्हें उंगली पकड़कर चलाना नहीं पड़ता। काकूलाल को दौलत हासिल हो गई और उसने उसका सही इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब मेरा यहाँ रुकना बेमैनी था। एक नाग पुजारी यहाँ छोड़े जा रहा था और फिर मैंने वो आबादी भी छोड़ दी और रेंगता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। ज़िंदगी की ये गाड़ी कितनी दूर जा सकती है, मैं उस तकलीफ़ के आलम में कहाँ तक अपने आप को घसीट सकता हूँ, ये फ़ैसला करना था। मुझे हर चंद के जिस्मानी तौर पर कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई थी। जब तक थकता ना था चलता रहता और फिर कोई भी जगह तलाश कर लिया करता था। फिर एक दिन एक बैलगाड़ी देखी और जिसे एक आदमी हाँक रहा था। छकड़े में ऊपर तक सब्जियां भरी हुई थीं। बस यूं ही दिल चाहा कि बैलगाड़ी पर चढ़ जाऊं। तेज़ तेज़ आगे बढ़ा। अब बाकायदा सांप तो था नहीं जो चलती गाड़ी पर चढ़ ना सकता और होशियारी से एक ऐसी जगह से ऊपर चढ़ गया जहां से मुश्किल ना हो। ठंडी ठंडी ताज़ा सब्जियों के दरमियान छुपकर बड़ा सुकून महसूस हुआ और उसके बाद में उन सब्जियों में ही पड़कर सो गया था। न जाने कब तक सोता रहा और फिर अचानक हलचल सी महसूस हुई। बहुत से इंसानों की आवाज़ें आ रही थी। मैं चौंक कर जाग उठा और एक जगह से मौका पाकर सर उठाकर देखा। बड़ी भीड़ लगी हुई थी। गालबन बाजार था। जो शख्स सब्जी लेकर यहाँ तक पहुँचा था और उसने बैल खोलकर एक दरख्त के साथ बांध दिए। ज़मीन पर चादर बिछा रहा था और एक लम्हे में सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया कि कोई सब्ज़ी फरोश जो अपने खेतों से सब्ज़ी लेकर आया है और अब यहाँ दुकान लगाकर उसे बेचेगा और चंद ही लम्हात के बाद वो सब्ज़ी छकड़े पर से उतार देगा। और इससे पहले कि सब्ज़ी में मेरी मौजूदगी का नीचे शोर पहुँचे, बेहतर ही यही था कि मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँ। कच्चे पक्के मकानात का एक वसी और ये सिलसिला फैला हुआ था। मैंने फुर्ती से अपनी जगह छोड़ दी और रींग कर गाड़ी के नीचे आ गया। कदे नहीं कुछ खाता। लोगों की निगाह बचाकर कोई ऐसी जगह तलाश करना चाहता था जहां वक़्त गुजार सकूं। वैसे तो ये दरख्त भी था जहां बैल बंधे हुए थे। मैं दरख्त पर भी चढ़ सकता था और इस वक्त उस भीड़ भाड़ में यही सबसे मुनासिब मौका था। अलबत्ता जब मैं दरख्त पर चढ़ा तो बैलों ने बड़ी उछल कूद मचाई थी, लेकिन मैं मौका पाकर खासा ऊंचा चला गया। सब्ज़ी वाले ने 2-3 वो नए बैलों के लगाए और बेचारे बैल खामोश हो गए। वो सांप की निशानदही करना चाहते थे, लेकिन शुक्र था कि उसके मुंह में ज़ुबान नहीं थी, वरना एक बार फिर हंगामा शुरू हो जाता। मैं दरख्त पर काफ़ी बुलंदी तक चला गया और ऊपर से थोड़े फासले पर दरख्त की शाखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। मैं उन हंगामों से बचने के लिए शाखों होता हुआ दूसरे दरख्त पर पहुंचा। फिर उस दरख्त से जुड़े हुए एक और दरख्त पर। बड़ा दिलचस्प सिलसिला था दरख्तों का और बुलंदियों का सफ़र करता हुआ मैं बाज़ार से काफ़ी दूर निकल आया। फिर जिस दरख्त पर पहुंचा और एक घर के आंगन में था। घर खासा बड़ा था और उसमें घर के मकीन रहते थे। यहाँ बड़ा सुकून, खामोशी और सन्नाटा था। मैं एक मजबूत शाख देखकर उस पर बैठ गया। अच्छी जगह थी और दरख्त भी काफ़ी कदीम था। उसमें दाढ़ियाँ निकली हुई थी। ये बरगद का दरख्त था और जगह जगह से खोखला भी था। मेरे छुपने के लिए उससे महफूज जगह और कोई नहीं थी। चुनाचा मैं यहाँ आराम से वक़्त गुजारी करने लगा। दिल में हंसी आ रही थी कि देखो अब यहाँ कौन सी कहानी शुरू होती है। ज़िंदगी का और कोई मकसद समझ में नहीं आया और अगर कोई कोशिश भी करता तो अब तो बिल्कुल ही रास्ते मसदूद हो गए थे। पदम चंदी ने सही महीनों में जो मेरे साथ किया था
उसे मलिया मीट करके रख दिया था। गौर किया जाता तो सिर्फ यही अंदाज़ा होता कि उसने मुझे अपना आले कार बनाया था अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए, और जब मैंने उसकी मर्ज़ी से ज़रा भी इनहराफ किया तो उसने अपनी कुव्वतों से काम लेकर मुझसे मेरी तमाम ज़िंदगी छीन ली थी। नहीं पदमचंदी, महाराज चेला हूँ आपका, मानता हूँ इस बात को कि आपने इस संसार में मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब जो एहसास दिलाया है आपने, और वो ये है कि आपने मुझे दिया नहीं बल्कि मुझसे ले सब कुछ लिया है। अब भी अगर आपकी इज्जत करूं और आपके लिए मन में जगह तलाश करूं तो ये अक्ल की बात नहीं। खैर, सारा जीवन तो इस तरह गुजरेगा नहीं, इस जीवन का कहीं ना कहीं अंत होगा, और जब अंत होगा तो उसके बाद मेरी सोच के दायरे बदल चुके होंगे, और उसके बाद मैं वो करूँगा जो आपके ख्याल में भी ना आए। कर्मयोगी का बदन है मेरे पास और राम तरवीदी की अकल है, तो क्या इतना भी नहीं सोच पाऊँ कि आपकी इस बुराई का बदला आपको कैसे दूँ। दिल ही दिल में सुलगता रहा और वक़्त गुजरता रहा। कुछ कर तो सकता नहीं था। जब बदन पर से कहोलत ज़ायल हुई तो उस मकान के मकीनों को देखा। 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे जो सहन में खेलते फिर रहे थे। मफलूकल हाल गिराना मालूम होता था, और अब भी यही सब कुछ देख रहा था कि बाहर से 11-12 साल की एक लड़की आई और तेज़ी से अंदर चली गई। फिर एक औरत एक उधेड़ उम्र शख्स को सहारा देकर बाहर लाई और उस दरख्त के नीचे खड़ी हुई पानों से बनी एक चारपाई बिछा दी गई और उस पर चादर डाल दी गई, और उसके बाद औरत ने लड़की को आवाज़ दी, जा बुला ला। लड़की बाहर चली गई और औरत उस अंदरूनी हिस्से में जहाँ से वो आई थी अपने साथ वो खेलने वाले बच्चों को भी वापस ले गई। 3-4 आदमी अंदर आए। एक नौजवान लड़के को साथ लाए थे जो शायद बीमार मालूम होता था। चारपाई पर बैठे हुए शख्स ने आंखें बंद कर ली और एक तस्बीह निकालकर हाथ में ले ली, जिसके वो दाने घुमाने लगा, और आने वालों ने झुक झुक कर सलाम किए तो उस शख्स ने तस्बीह पर फूंक मारी और उन लोगों को देखने लगा, और फिर उसकी नज़र लड़के पर पड़ी और वो उसे घूरने लगा। उन लोगों ने लड़के को बिठा दिया। लड़का इधर उधर गर्दन मार रहा था। तब चारपाई पर बैठे हुए शख्स ने कहा, तो ये बात है, यहाँ आते हुए भी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि मौलवी रहीमुल्लाह के यहाँ जा रहे थे? मैं कहता हूँ कि इस घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? बोलो बोलो। और चारपाई पर बैठे हुए शख्स की आवाज़ बुलंद होती चली गई। जो लोग इसे साथ लेकर आए थे उन्होंने गर्दनें झुका ली थी। मौलवी रहीमुल्लाह ने आवाज़ दी, अरे नूरी, गिलास में पानी लेकर आ। नूरी उसी लड़की का नाम था जिसने बाहर आकर इतला दी थी कि कोई आया है, और वो लड़की गिलास में पानी ले आई। मौलवी रहीमुल्लाह पानी पर कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने हाथ में पानी लेकर उस लड़के पर पानी के छींटे मारे। लड़का खामोशी से बैठा रहा। कोई ख़ास बात नहीं हुई थी, और कुछ देर के बाद मौलवी रहीमुल्लाह ने पानी का गिलास उस तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले पानी पी ले। और लड़के ने गिलास हाथ से लेकर वो पानी पी लिया। मौलवी रहीमुल्लाह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, अब आए हो मियाँ राह रास्त पर, और भाई करीम बख्श, क्या बात है? अब आप क्या बताएं मौलवी साहब, आपने तो खुद ही देख लिया क्या हालत हो जाती है। हूँ ठीक है, ऐसा करो मियाँ, वो हकीम शबीर अहमद खान है ना, उन्हें भी दिखाओ। दवा दारू ज़रूरी चीज़ होती है और हम तुम्हें कुछ लिख देते हैं, उन्हें जलाओ, शिफा होगी। अब तो उसकी हालत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, आने वालों में से एक ने कहा। हाँ, यहाँ आकर तो शक्ल ही बदल गई। ये अल्फाज करीम बख्श के थे। मौलवी रहीमुल्लाह का आपका दम गनीमत है हमारी बस्ती में, एक और ने कहा। बस मियाँ, किसी की कोई खिदमत हो जाए तो समझ लो कि दबीर पार हो जाता है। अच्छा, तो तुम यूँ करो कि कुछ नज़र न्याज के लिए पैसे दे जाओ और कल कुछ चीज़ें लेकर आ जाना, मैं तुम्हें बताए देता हूँ। मौलवी रहीमुल्लाह ने कुछ चीज़ें बनाई। जो मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, उन लोगों ने अकीदत से गर्दन झुका ली। मौलवी साहब ने सदरी की अंदरूनी जेब से कुछ निकाल कर दिया और मुट्ठी में दबाकर करीम बख्श के हवाले कर दिया। फिर वो लोग चले गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था, और उनके जाने के बाद वही लड़की जिसका नाम नूरी लिया गया था आगे बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर आई।
फिर अंदर से वो उम्र रसीदा औरत बाहर निकल आई जो मौलवी रहीमुल्लाह को सहारा देकर यहाँ लाई थी। वैसे मौलवी रहीमुल्लाह अपाहज थे और उसकी एक टांग घुटने के पास कटी हुई थी और वो बैसाखी लगाकर चलता था। इस वक्त वो खुश नजर आ रहा था। वो औरत उसके पास पहुंची और उसने जेब में हाथ डालकर वो रकम निकाली और औरत की जानब बढ़ाता हुआ बोला, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो ही चला है। नसीरा देखना, अब तुम कह रही थी ना कि आटा दाल नहीं है और खाने को तो कुछ भी नहीं आज। मेरा ख्याल है कि हफ्ते भर का बंदोबस्त तो हो गया, कल भी कुछ न कुछ आ जाएगा। चलो कहीं ना कहीं से मौला भेज देता है। औरत जिसका नाम नसीरा लिया गया था अफसुर्दा नजर आने लगी। बोली, देखो ये सब कुछ ठीक नहीं है रहीम खान, ये जायज़ नहीं। किसी बीमार को शिफा ना दे सको तो झूठा दिलासा भी तो ना दो ना। अरे क्या फजूल बातें करती हो तुम नसीरा। मैंने ये भी तो कह दिया है कि हकीम शबीर अहमद को दिखा दें, मगर तुमने फ़ौरन ही उन लोगों पर झूठी बातें भी तो लादनी शुरू कर दी थी। क्या पढ़ा था तुमने उस पानी पर? देखो दीवारों के भी कान होते हैं नसीरा, फजूल बातों से परहेज़ करो। क्या करूं? अगर ये सब कुछ ना करूं तो भूखा मार दूं बच्चों को। अपाहज हूं, अरे टांग कट गई, अब क्या कर सकता हूं मैं। 2 कौड़ी का होकर रह गया। अल्लाह ने औलाद भी दी तो सबसे बड़ी बेटी, 4 पैसे कमा कर भी नहीं ला सकती। भूखे मर जाओगे तुम सब लोग। देखो नसीरा, मजबूरी है और मेरा दिल खुद दुखता है ये सब कुछ करते हुए, लेकिन ज़रा बाहर निकलो, 4 पैसे मांग लो। मुंह बनाकर और मुंह टेढ़ा करके वो पास से निकल जाता है। मेरे सगे भाइयों को ही ले लो, उनसे ज़्यादा मजाक उड़ाता होगा हमारा कोई। एक से एक कमीना है, आधा सेर आटा तो कोई दे नहीं सकता। हाँ, बातें बनाने के लिए सब आ जाते हैं। देखो किसी ने पलट कर पूछा, क्या हाल है तुम लोगों का, पेट भरा हुआ है या भूखे मर गए? नहीं नसीरा बेगम, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। जो कुछ कर रहा हूँ मौला जानता है कि मजबूरी के आलम में हूँ। तुम्हें पता है कि ऐसे उल्टे सीधे चक्कर नुकसान भी दे सकते हैं। क्या नुकसान देंगे? बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। मौला की मर्जी, मैं किसी का क्या दखल। अगर बच्चों को इसी तरह नुकसान पहुंचना है तो पहुंच जाए भाई, और वैसे भी नुकसान पहुंच रहा है उन्हें। पेट में रोटी ना होगी तो वैसे ही मर जाएंगे। रहने दो नसीरा, बहुत ज़्यादा कचोके ना लगा मेरे दिल पर। बस जो हो रहा है वही होने दे। अब तो खुद देखना इंसान भाइयों पर कितना भरोसा करता है, मगर उस वक़्त तक जब तक माँ बाप की कमाई होती है, जहाँ ये अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हुए और सब की मसाल ही निराली हो जाती है। हर एक सीना तान कर अपने आप को 30 मार खान कहता है, एक दूसरे की परवाह नहीं करता। बीवी बच्चों के फेरे में पड़ जाते हैं सारे के सारे, और ये भूल जाते हैं कि कभी रातों को एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर सोया करते थे। अब तो बता, कौन है मेरा, कौन है? मौलवी रहीमुल्लाह की आवाज़ भारी हो गई और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बीवी नसीरा भी अज़ुर्दा हो गई थी और उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, ऐ अल्लाह, हमारी मुश्किल आसान कर। क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? तूने कहा है कि तू भूखा उठाएगा ज़रूर, सुलाएगा नहीं। फिर हमारी तरफ से तूने क्यों आंखें बंद कर ली हैं? तौबा कर नसीरा, तौबा कर। अरे आंखें बंद की हैं, ये देख, और उसमें हफ्ते भर का आटा और दाल आ जाएगा। कहाँ आंखें बंद की हैं उसने? मैंने ठंडी सांस ली और इस गुफ्तगू से हालात का कुछ अंदाज़ा हो जाता था। ये कोई मुसलमान घराना था। मौलवी रहीमुल्लाह अपाहज हो गया था और उसके बाद उसने ये झाड़ फूंक का धंधा शुरू कर दिया था। साहबे ज़मीर लोग थे और दिल से इस काम को बुरा समझते थे, मगर मजबूरियां आड़े आती थीं। चल भाई तरवीदी, फिर कोई चक्कर चला। अच्छे हैं ये सारे धंधे, बुरे नहीं, लेकिन अब चक्कर क्या हो सकता है? क्या इसी में वक्त गुजरता रहेगा, और वो भी एक कप कीड़े मकोड़े की हैसियत से? जिस्म अपना होता और उसमें तवानाई होती तो हाथ पैरों से भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब इस आलम में अब हर जगह तो खंडरात है नहीं जहाँ से मोटे के कल से निकाल लिए जाएं। अब इन लोगों के लिए क्या किया जाए? मैंने उस दरख्त पर बसेरा कर लिया और किसी की तवज्जो दरख्त पर नहीं जाती थी। दरख्त के आधे खुले तने में मेरे लिए काफ़ी जगह मौजूद थी, यहाँ से देख लिए जाने का ख़तरा भी नहीं था, और ऐसी जगह थी कि जहाँ से मैं बाहर के मनाज़र भी देख सकता था। और बाद में कुछ और तफसीलात भी मालूम हुई। मौलवी रहीमुल्लाह बहुत मशहूर हो गए थे और बहुत से लोगों का इलाज भी कर चुके थे।
उन लोगों ने खुद एतराफ़ किया था कि उन्हें कुछ नहीं आता, बस उल्टी सीधी झाड़ फूंक करके काम चला लिया करते हैं और ये काम वो बेहालते मजबूरी करते हैं। फिर एक दिन सुबह ही सुबह एक दिलचस्प सूरत हाल पेश आ गई। कुछ लोगों ने उस वक़्त दरवाज़ा बजाया था जब घर के मकीन सो रहे थे। दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया गया और मैं चौंक कर दरवाज़े की तरफ देखने लगा। फिर अंदर से मौलवी साहब की बीवी बाहर निकली। दरवाजे के करीब जाकर पूछा कि कौन है, तो शायद बाहर से कुछ ने कहा गया और नसीरा की आवाज़ मेरे कानों में उभरी, क्या काम है। बाहर से जो आवाज़ आई थी और उस पर मैंने बगौर तवज्जो दी। कहा गया था मौलवी साहब से मिलना है। कौन हैं आप? उनसे ये कह दो कि ठाकर प्रथना मूर्ति के घर उनके आदमी आए हैं। अच्छा, कह देती हूँ। औरत वापस मुड़ गई और फिर कुछ देर के बाद मौलवी साहब को सहारा देकर लाया गया। चारपाई जो खड़ी हुई थी बिछा दी गई और मौलवी साहब उस पर बैठ गए। फिर लड़की नूरी ने जाकर दरवाज़ा खोला। धोती और कुर्ते में मलबूस 4-5 आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, मौलवी साहब, मेरा नाम भूषण चंद है। ठाकर करम प्रार्थना मूर्ति के यहाँ से आया हूँ। हवेली वाले ठाकुर साहब? हाँ, ठाकुर प्रार्थना मूर्ति कोई ऐसी भी है जो ना जानता हो, पर क्या बात है भैया, सुबह ही सुबह क्या परेशानी हो गई? वो अपने जिसवंत मूर्ति है ना, ठाकुर प्रार्थना मूर्ति का अकलौता बेटा। हाँ, जानता हूँ उसे, मौलवी साहब ने कहा। सांप ने काट लिया है उसे। 3 दिन से थाली भेज रही है और वो दवार के सपेरे आ गए हैं, पर कोई भी सांप को बुलाने में कामयाब ना हो सका। किसी ने आपका नाम लिया है ठाकुर प्रार्थना मूर्ति से, मगर भाई हमसे चला फिरा नहीं जाता, जाएंगे कैसे? बैलगाड़ी भेजी है ठाकुर प्रार्थना मूर्ति ने और कहा है कि मौलवी साहब को जिस तरह भी हो सके उन्हें लेकर आओ। हाँ, हम तैयार हैं, ज़रा मुंह हाथ धो लें। अरे नूरी, ज़रा लोटे में पानी लाओ। मौलवी साहब ने मुंह हाथ धोया। मेरे दिल में एकदम से ये तसव्वुर जागा था कि जिस तरह भी बन पड़े और ज़रा मैं भी मौलवी साहब के साथ जाऊं, देखूं ज़रा क्या चक्कर है। और बाहर जाने का रास्ता तो मौजूद था ही। मैं दरख्तों की शाखों पर रेंगता हुआ ऊपर चढ़ा और मौलवी साहब के बाहर निकलने में ज़रा देर थी। बहरहाल मैं बाहर पहुंचा और मैंने वो बैलगाड़ी देखी जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। 2 ताकतवर बैल जुटे हुए थे और उसमें, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मैं इस बैलगाड़ी तक कैसे पहुंचूं। मैं चंद लम्हात सोचता रहा। आसपास कोई नहीं था और मैंने दरख्त की शाख से बैलगाड़ी पर छलांग लगा दी और फिर रेंग कर उसके निचले हिस्से में पहुंच गया। जानवरों में बड़ी सूझबूझ होती है। बैल कनौतियाँ बोलने लगे और उछल कूद मचा रहे थे और उनके गले में बंधी हुई पीतल की घंटियाँ बज रही थी। तब अंदर से 2 आदमी बाहर निकल आए और उनमें से एक गाड़ी बांधा और उसने बैलों की रस्सियाँ पकड़ लीं और उन्हें संभालने लगा। फिर बोला, अरे पापियों, क्यों उछल कूद कर रहे हो? ठीक है, खड़े रहो, चलते हैं अभी। और फिर उनमें से एक ने उनकी रस्सियाँ पकड़ी रखीं और दूसरा अंदर चला गया, मगर बैलों के अवसान खता थे। पता नहीं मेरी बू सूंघ रहे थे या उन्होंने मुझे देख लिया था। उछल कूद ही मचाते रहे। मुझे बैलगाड़ी के निचले हिस्से में एक बहुत अच्छी जगह मिल गई थी जहां मैं आराम से घुस कर बैठ सकता था और मैंने अपने बदन को सिकोड़ कर वहीं अपने लिए जगह बना ली। मैं मज़े से बैलगाड़ी में सफ़र कर रहा था, लेकिन कम वक्त बैलों को शायद मेरी मौजूदगी का इल्म था और ऐसे जान तोड़कर भाग रहे थे कि मेरा बदन बार बार फिसल जाता और अपने आप को संभालने के लिए मुझे अपना जिस्म खासा सख्त करना पड़ा। लेकिन शुक्र था कि सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। एक बड़ी सी हवेली के अहाते में बैलगाड़ी दाखिल हो गई और जैसे ही बैलगाड़ी अंदर घुसी मेरे कानों ने अजीब सी बेहंगम आवाज़ें सुनी। पता नहीं क्या चीज़ बजाई जा रही थी और लोगों की मौजूदगी का एहसास भी होता था। बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी गई और उसके बाद लोग मौलवी रहीम खान को पीछे से उतारने लगे। जो कुछ था सामने ही था और मैंने अपनी जगह से बाहर का मंजर देखा। बहुत से लोग जमा थे, इधर से उधर आ जा रहे थे और अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने देखा कि लोगों ने मौलवी साहब के लिए रास्ता छोड़ दिया और उन लोगों के दरमियान एक नौजवान लड़का पलंग पर लेटा हुआ था और मैंने बखूबी उसका जायज़ा लिया। वो सांप के कांटे का शिकार था और उसका रंग नीला पड़ा हुआ था और उसके आसपास बहुत से लोग बैठे हुए थे। मौलवी साहब उनके पास पहुंच गए। क्या बात है ठाकुर प्रार्थना मूर्ति,
छोटे महाराज की हालत तो ठीक नहीं। मौलवी साहब मैं बताता हूँ। हाँ बताओ भाई। 3 दिन पहले जसुनत मूर्ति को सांप ने काट लिया है मौलवी साहब। ये हालत है इसकी। हमारे वीद तबीब देख देख कर जा चुके हैं और उनका कहना है कि सांप के कांटे का इलाज यही हो सकता है कि जिस सांप ने काटा है वो आए और उसका जहर चूस ले, और कोई इलाज नहीं इसका। और बड़ी बड़ी दूर से सपेरे आए हैं, ये देख लीजिए। 3 दिन से थाली बज रही है। बहुत से सपेरे हर तरह की कोशिश कर चुके हैं, ना जाने क्या क्या जंतर मंतर किए हैं, पर सांप है कि आता ही नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, कहने लगे कि ठाकर प्रार्थना मूर्ति, इन सपेरों को तुमने देख ही लिया, सारे जादू मंत्र बेकार हो गए हैं, और अब उनके अब ऐसा करो कि ज़रा मौलवी साहब को दिखा लो। आजकल बहुत से नाम बन रहे हैं और इनका जो कोई भी उनके पास जाता है सेहतमंद होकर आता है। मौलवी साहब आप हमारी बस्ती के आदमी हैं, ठाकर प्रार्थना मूर्ति भी जिस किस्म के आदमी हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ना कभी हिंदुओं को तकलीफ़ दी और ना मुसलमानों को। हम लोग भाईचारे से रह रहे हैं, और आप भी बाल बच्चों वाले हैं। आपको पता है कि प्रार्थना मूर्ति जी का एक ही बेटा है जो सुन्नत मूर्ति और जीवन और मरण के फेर में है। मौलवी साहब जी कुछ कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। ठाकुर साहब बिन मौत मर जाएंगे, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा जिस सुन्नत मूर्ति के दम से तो ये सारा काम धंधा चल रहा है। मौलवी रहीमुल्लाह खान अब कुछ परेशान से नज़र आ रहे थे। मैं तो ये बातें सुन ही चुका था कि वो बने हुए दरवेश हैं। मेरी दिलचस्पियाँ हद से बढ़ गई थी। मौलवी साहब लड़ती हुई आवाज़ में बोले, असल में ठाकर साहब ये बिल्कुल अलग है। ये तो जादू मंत्रों वालों का खेल है। ये इतने बड़े बड़े सपेरे बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सके अभी तक। कहा ना कि 3 दिन से थाली बजा रहे हैं। ये तीजा मिल है, एक बस्ती का बहुत बड़ा सपेरा और बड़े बड़े नागों से लड़ चुका है, मगर इसका कहना कुछ और ही है। मैंने तीजा मिल को देखा, काला स्याह रंग, बड़ी बड़ी नोकीली मूंछें, सुर्ख सुर्ख आंखें, लंबा चौड़ा कद, और ख़ुद भी काला नाग ही मालूम होता था, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत छाई हुई थी और गुस्से में भरा बैठा था। कहने लगा, हम जो कुछ कह चुके हैं वो कोई मान ही नहीं रहा, हम क्या करें। क्या कहा है तुमने तीजा मिल? मौलवी साहब ने पूछा। जिस सांप ने जसुनत मूर्ति को काटा है वो खुद भी जीता नहीं है, महाराज मर चुका है, वरना तीजा राम जमीन की तुम्हें तहें खोद कर उसे निकाल लेता। वो पाताल में भी चला गया होता, उसे निकाल लिया जाता। तीजा मिल को क्या समझते हैं? हम 3 दिन से बीन बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। सांप जीता होता तो ज़रूर आ जाता। वो खुद भी किसी तरह मर चुका है, मार दिया होगा किसी ने। अब कोई दूसरा सांप तो आने से रहा तो फिर इसका इलाज क्या होता है? सारे इलाज कर चुके हैं हम अब हम क्या कहें? सिर्फ महाराज का मन बहला रहे हैं, वरना तीजा मिल खामोश हो गया। भगवान ना करे ऐसी बात ना कर तीजा मिल, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसी बात ना कर। हमें जान से मारने से क्या होगा ठाकर प्रार्थना मूर्ति? बस अब देख लो, ये मौलवी साहब आए हैं, इनको पकड़ो, देखो ये क्या करते हैं। प्रार्थना मूर्ति अपनी जगह से उठा और मौलवी साहब के पैरों में बैठ गया। और मौलवी साहब, एक ही बेटा है मेरा, एक ही बेटा। दीन धर्म को भूल जाइए, जो कुछ भी हो सकता है कीजिए। आपको अल्लाह का वास्ता, आपको हमारे भगवान का वास्ता। ठाकुर जी जान देकर भी आपके काम आ जाता तो इससे अच्छी बात और कोई ना होती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पानी मंगवा दीजिए 1 गिलास। मौलवी साहब के अंदाज में बेचारगी थी। वो बस अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते थे। जब 3 सपेरे मिलकर भी कुछ ना कर सके तो मौलवी साहब बेचारे क्या करते। अलबत्ता मेरी तेज़ निगाहें जसुनत मूर्ति का जायज़ा ले रही थी, सांप के कांटे का शिकार। और मैं तो इस सिलसिले में तजर्बा रखता था। नाग रानी ने काटा था, सनीथा ने काटा था, और उस आदमी को भी जिसका नाम भी इत्तफाक से काकू लाल ही था, और मैंने उसका जहर चूस कर उसे ज़िंदगी दी थी। इस वक्त मैं इंसानी शक्ल में था। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया। अगर जसुनत मूर्ति सांप के कांटे के ज़हर असर है तो ये जहर तो मैं आसानी से चूस सकता हूँ। देखो, हो सकता है कि मौलवी रहीमुल्लाह की तकदीर बदल जाए। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। अलबत्ता ज़रा सा इंतज़ार ज़रूरी था। सपेरों ने थाली बजाना बंद कर दी।
कुछ देर के बाद पीतल के कटोरे में पानी आ गया और मौलवी साहब उस पर कुछ पढ़कर बदबदाने लगे और फिर उन्होंने पानी में हाथ डाला और उसके छींटे लड़के पर मारने लगे। नौजवान लड़का था, कोई 20-21 साल की उम्र होगी। पानी उसके बदन पर मारने के बाद मौलवी साहब ने वही पानी लेकर इधर उधर छिड़का। तमाम लोग साकत हो गए थे। अंदर से रोने की आवाज़ें भी बंद करा दी गईं। बस यही मौका था कि मैं मंजरे आम पर आ जाऊं। हालांकि बड़ा ख़तरा मोल ले रहा था। हो सकता है कि बाद में ये लोग मेरे ऊपर ही टूट पड़े, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, जान से मारने से रहे। मुझे ये तो इतना मैं अच्छी तरह जानता था। मौलवी साहब अपने अमल से फारग हुए ही थे कि मैं खामोशी से बैलगाड़ी से नीचे उतर आया और उसके बाद रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक ही लोगों के मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगी। सारे के सारे भरमार कर पीछे हट गए थे और मेरे लिए जगह छोड़ दी गई। मैंने मौलवी साहब को देखा, थर थर कांप रहे थे, आंखें फटी हुई थी, हाथ में पानी का प्याला था जो लर्जने की वजह से चमक रहा था और पानी खुद उनके ऊपर ही गिर रहा था। ठाकुर प्रार्थना मूर्ति के पास पहुंच गया और मैंने उनकी रान के पास वो जख्म देखा जो सांप के कांटे का जख्म था, और फिर मैंने अपना मुंह उसके जख्म पर रख दिया।